Welcome dear students and friends to this channel. So today we are going to start a very new topic, that is trees. So tree is nothing but an application of doubly linked list. So the concept of single linked list and double linked list we discussed in previous lectures. So those who want to go through in detail, so they can refer my previous lectures. And those who are new to this channel and watching this channel as first time, so just go through my previous lectures, then you are at a comfortable mode. Okay, so let us start. So tree is what? An application of doubly linked list. So how it is an application? So because let us assume this is a tree, ये एक ट्री है. अब इसमें डबली लिंक लिस्ट किस तरीके से, हर एक नोड जो है ट्री का, इसमें एक तो इंफॉर्मेशन फील्ड है और डेटा फील्ड, और दो इसमें लिंक है, तो ये डबल लिंक लिस्ट टाइप का है ना. तो यहाँ एक लिंक यहाँ बी पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ सी पे पॉइंट कर रहा है. यहाँ बी जो नोड है उसका लेफ्ट पॉइंट जो है वो डी पे कर रहा है, और राइट पॉइंटर जो है वो कहाँ कर रहा है, ई पे. एंड सिमिलरली सी के केस में सी का लेफ्ट पॉइंटर एफ पे पॉइंट कर रहा है और राइट पॉइंटर जी पे. तो ये कुछ इस तरीके से नोड क्रिएट होगा. सो स्ट्रक्चर फॉर दिस डबली लिंक लिस्ट इज लाइक दिस, कि इंटीजर डेटा पार्ट होगा, और स्ट्रक्ट बीटी नोड इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर. स्टार एलपी मीन्स लेफ्ट पॉइंटर, स्टार आरपी मीन्स राइट पॉइंटर. सो दिस इज द definition of node. Okay, so this is the picture till now, है ना. So here what, if you observe very carefully, so tree is mainly what, tree is a hierarchical data structure. Okay, so which is mainly used for what, tree is mainly used for what, searching. Okay, so tree is mainly used for what, for searching. Okay, so mainly the use of the tree is what, searching. So this is very important. Okay, searching is an ultimate thing. Okay, ultimate operation which is in general performed at any level, okay, in computer science. So for if we want to search anything, then those keys or those data we are supposed to put in tree. Why? So further as we will move to the lecture, okay, or in further lectures of tree, so then you get to know that why I'm saying that tree is used for searching, because due to what, time reduction, okay, or time complexity is less in trees as compared to other data structures. Okay, so now let us move ahead. So this is somewhat tree. So let us suppose this is 1000 location, this is what, 2000 location, this is 3000 location, and this is what, 4000 location, and suppose this is 5000, and this is 6000, and this is what, 7000. So if you observe carefully कि इसके A के लेफ्ट फील्ड में क्या होगा, इसमें 2000 स्टोर होगा, देन ओनली इट इज पॉइंटिंग टू दिस. और यहाँ A के राइट फील्ड में क्या होगा, पॉइंटर में 3000 है ना. सिमिलरली यहाँ क्या होगा, 4000, और यहाँ होगा आपका 5000, एंड सिमिलरली यहाँ पे होगा आपका 6000, एंड राइट ऑफ सी इज व्हाट, 7000. और यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ नल होगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉइंटिंग है ना टू एनी नोड, इट इज ऑल्सो नल. So this is also null, so this is also null. Okay, and same case over here. So this is null, and left of G is null, and right of G is also. Okay, so now few terminologies, so this node is called what, this node is called as root of the tree. Okay, root of the tree or root node of the tree. And any node which is not having their left child or right child, so those nodes are called what, leaf nodes of the tree. So what are the leaf nodes? So like D, E, F and G, these are leaf nodes. Why? Because इनके left और right pointer क्या है, null है. तो अगर हमें leaf node तक पहुंचना है, so how to reach? If left pointer as well as right pointer of a particular node is null, then that node is what, leaf node. Or except leaf node, all are what, internal nodes. So internal nodes means those who are having what, some sort of left pointer or right pointer.
So I hope that this concept is clear to you. This is the basic concept of tree. Now let us see all these things programmatically. So struct bt node, this is what structure for binary tree node. Now the very first program is write a program to find number of leaf nodes in the given what binary tree. So what will be the case in that case? So number of leaf nodes, let us suppose leaf find karna hai humko, okay, and what is given? So you are given a struct bt node and star what root. Let us suppose root is given, okay. Root means starting address of the node, okay, parent node, okay. Now all these recursive program, all these are recursive program because hierarchical manner hai na, and ultimately we are using what doubly linked list. So if what, let us suppose this is what, instead of root it is, let us suppose s. So if s double equals to null means no tree is given. So no tree is given, in that case what, return simply, okay, or return 0 whatever, or else if s left pointer double equals to what, null, and s right pointer double equals to null. So what is the meaning of this line? कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हम एक ऐसे नोड पर हैं, पर्टिकुलर नोड पे जहां का लेफ्ट पॉइंटर भी नल है और राइट पॉइंटर भी नल है. सो दैट नोड इज व्हाट, दैट नोड इज लीफ नोड ऑलवेज, है ना. सो इन दैट केस हमें काउंटिंग करना है. तो इसको काउंट करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे व्हाट, 1, रिटर्न 1, ओके. तो रिटर्न 1 मीन्स यहाँ एक काउंटिंग हो चुका है. और एल्स इफ मीन्स लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर नल नहीं है, सो मीन्स समवेयर व्हाट, इंटरनल नोड. तो इंटरनल नोड में क्या केस हो सकता है, इंटरनल नोड में कि इफ लेट अस सपोज, फिर हम लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे सेपरेटली. सो लेट अस से एक्सएल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट के लिए हम लीफ कॉल करेंगे एंड एस एरो लेफ्ट पॉइंटर. सो लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, लीफ काउंट करके आएंगे, और फर्दर फिर सेम कॉन्सेप्ट राइट साइड में चले जाएंगे एंड लीफ नोट्स काउंट करके आएंगे, एस ऑफ राइट पॉइंटर, ओके. एंड फाइनली जब रिटर्न होंगे तो यहां से हम क्या रिटर्न करके देंगे, रिटर्न करके देंगे एक्स एल प्लस एक्स, मीन्स लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में जितने लीव्स होंगे वो फाइनली हम यहां से रिटर्न करके देंगे, लाइक दिस, ओके. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एल्स, है ना, बॉडी, एंड दिस इज दिस पर्टिकुलर एल्स बॉडी, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, this is going to be your entire body for the program. So it is very simple if you observe carefully that for example a, okay, a is having some values like this, है ना, and b is having some values like this, okay. c is also a node, and here let us assume this is d, this is e, okay, this is f, and this is what g, as है ना our case previous one, है ना, like this. तो अगर हम इसमें अप्लाई करें, so how we are finding this? So we are starting from this root. So this is root, or other way of saying s. So this link will point to this link will point to this to this to this, and similarly left and right will point to this. And this is what, null, this is null, this part is null, this part is null, this part is null, and right side, left side of g and right side of g is also null, okay. Now observe very carefully. So we are given s. So s means if s equal to null, no, root is there. So else part, if left side and right side both are null, no, it is not null, means it is not leaf. So what else part में पहले हम क्या करेंगे, लीफ के लिए ये 3 स्टेटमेंट्स करना है यहाँ पे, है ना. तो हम पहले लेफ्ट साइड में चले जाएंगे. तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आए, तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर फर्दर आप देखेंगे तो बी के केस में क्या होगा, फिर यहाँ लेफ्ट पे आ जाएंगे. तो ये क्या है, लीफ. तो लीफ है, तो यहाँ से इसका नोड का लेफ्ट और राइट दोनों नल है, तो यहाँ से रिटर्न क्या होगा, यहाँ से 1 रिटर्न होगा, ठीक है. तो 1 रिटर्न हुआ यहाँ पर, तो यहाँ ये 1 आया लेफ्ट साइड से, प्लस राइट साइड से जाएंगे तो यहाँ से भी क्या रिटर्न होगा, 1. तो 1 + 1 ओवरऑल क्या रिटर्न होगा,
overall will be returned as what 2. So here in all 2 will be returned plus. now अब राइट साइड में जब हम जाएंगे तो राइट साइड का कॉल होगा, राइट साइड में लेफ्ट में आएंगे सो इट इज व्हाट 1, सो हियर 1 विल बी रिटर्न है ना, एंड प्लस फ्रॉम दिस साइड आल्सो 1 will be returned, so overall the final value is what 2, so 2 will be returned and overall you will get what 4 as the answer, because number of leaf nodes are what, number of leaves is equals to 4 in that case. So this and this. So I hope that this is clear to you. So this algorithm is, or this program is working effectively in that case. Okay, so let us see the same program. So this is the same. So number of leaf nodes, struct bt node star s, if s double equal to null means no node is given, then return 0 obviously, else. So what is the else case? So this is the entire program, and this is what, this is the else part, and this is the else part of internal. So and else if s left double equal to null and s right double equal to null means लेफ्ट और राइट नल है किसी नोड के, दैट मींस दैट इज द लीफ नोड. लीफ नोड है तो उसका रिटर्न 1 होगा बिकॉज काउंट करना है लीफ नोड्स. एल्स अगर नहीं है तो इन बिटवीन हम किसी नोड पे हैं, देन व्हाट विल हैपन, तो नंबर ऑफ लीव्स काउंट करेंगे लेफ्ट के लिए, कॉल करेंगे एक्सएल में स्टोर किया, नंबर ऑफ लीव्स काउंट किए राइट के लिए एक्सआर में स्टोर किया और रिटर्न करेंगे एक्सएल प्लस एक्स. सो दिस इज व्हाट रिकर्सिव स्टेप, दिस इज व्हाट रिकर्सिव स्टेप है ना, and this is recursive step or this is initial condition. So this code will work effectively, okay, in that case number of leaps. Now next is write a program to find number of internal nodes in the given binary tree. So it is also similar, but what about internal node? internal node के केस में क्या हो सकता है कि लीफ नोड्स हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है, तो हमें इंटरनल ही काउंट करना है. तो इंटरनल के केस में क्या होगा कि कंडीशन चेंज हो जाएगी. व्हाट विल बी द कंडीशन इन दैट केस, कि जो हम कंडीशन चेक कर रहे थे कि इफ एस डबल इक्वल्स टू व्हाट नल, तो इस केस में तो रिटर्न 0 होगा, ओके. बट एल्स के केस में जब हम चेक कर रहे थे कि एल्स इफ व्हाट एस लेफ्ट पॉइंटर डबल इक्वल्स टू नल एंड एस राइट पॉइंटर डबल इक्वल्स टू नल, तो इस केस में ये क्या था, लीफ नोड था, तो हमें यहाँ काउंट कर रहे थे, बट यहाँ लीफ काउंट नहीं करना है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा 0, ओके. और जब आप एल्स में जाएंगे तो एल्स में आपका व्हाट विल बी काउंटेड एट दैट टाइम, तो अगर आप एल्स में एंटर करेंगे सो एल्स के केस में क्या होगा कि एक्स एल, सो व्हाट विल बी एक्स एल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरनल नोड है ना, इंटरनल, सो एस इज गिवन है ना, and what will be counted like internal of s left and similarly xr internal of right side. So what is the right side, x of rp, okay. and finally जब आप यहाँ कैलकुलेट करके आएंगे तो उसमें 1 आपको ऐड करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज करंट नोड पे जब आप रिटर्न होके आए हैं तो वो नोड आपको काउंट करना है, ठीक है, बिकॉज दैट इज द इंटरनल नोड. सो 1 प्लस xl plus xr, so this is the program for that, okay. So this is very simple program. So if you are not getting, then observe very carefully. So what will happen in that case, firstly s is not equal to null, start from the starting. So starting is what given as what, root node. So root node, let us suppose this is what s. Now s is not null, yes obviously, s left pointer and right pointer is also not null, then else part. So else part is, सो यहाँ क्या होगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे हम, फिर लेफ्ट के फर्दर लेफ्ट में जाएंगे तो ये नॉट नल, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा 0, तो यहाँ से आया है ना 1 प्लस, यहाँ से 0 आया प्लस, यहाँ से भी कितना आएगा, यहाँ से भी 0 रिटर्न होगा, सो 0. सो द ओवरऑल रिजल्ट विल बी व्हाट 1, क्योंकि अभी यहाँ 1 इंटरनल हो गया. फिर यहाँ रिजल्ट कितना आया आपको 1, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा 1, तो यहाँ से 1 है प्लस ये जो लेफ्ट साइड का रिटर्न हो गया है 1 और प्लस राइट साइड का जाएंगे तो यहाँ से रिटर्न होगा 0, यहाँ से होगा 0, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0, सो दिस विल गिव यू 1 एंड दिस 1. सो if you overall count this, so this will result what 3 as the answer, okay. So this is like this, this is returning okay over here like this. So I hope that this is clear to you. This is what number of internal nodes, very easy task है ना.
So see, this is the code for that, same code. So function name is number of internal node, struct bt star s. So this is the root node and given means address for the root node is given, and if s double equal to null means no tree is given. So then in that case what, return what, 0. Else, so in else case, if left part of s is null and right part of s is null, then that means that the node is what, लीफ नोड होगा आपका, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट नल है, दोनों पॉइंटर्स, तो लीफ नोड, तो लीफ नोड काउंट नहीं करना है तो रिटर्न क्या करेंगे, 0 यहाँ पे, ठीक है, सेम केस. बट एल्स, तो हम अगर ऐसा भी नहीं है तो सम सॉर्ट ऑफ इंटरनल नोड है वो, तो इंटरनल नोड है तो यहाँ 1 काउंट करेंगे प्लस एक्सएल में उसका लेफ्ट के लिए कॉल कर देंगे नंबर ऑफ इंटरनल्स के लिए, एक्सआर में राइट के लिए, और एक्सएल और एक्सआर का जो भी काउंट आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे क्योंकि करंट नोड हमारा इंटरनल है, ठीक है, जिसपे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. सो दैट इज द थिंग. So this is the same code but a little bit modification, a little bit change. So this will gives you what, number of internal nodes. Okay, so number of internal nodes in a given what, binary tree. So I hope that this concept is clear to you, and a very simple program and easy. So we are observing carefully that all these programs are what, recursive program in nature. Why recursive program? Because the same task is we have to follow again and again at each and every node, and if the same task is going to be followed, then in that case what, recursive nature of the program is what, recursive, है ना. Now the next code is what, write a program to count number of nodes in the given binary tree. So it is very obvious. तो ये भी simple है कि nodes. So let us suppose we have to count what, nodes. So nodes is the function, and what we given, struct bt node star s. ओके, अब लेट अस सपोज अगर नोड ही ना हो, एस डबल इक्वल टू नल हो, तो फिर वहां तो कुछ काउंट है ही नहीं, वहां क्या रिटर्न करेंगे, सिंपली 0. बट एल्स इफ के केस में क्या हो सकता है, एल्स इफ अगर उसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों नल हो, इफ एस लेफ्ट डबल इक्वल टू नल एंड व्हाट, एस राइट पार्ट डबल इक्वल्स टू व्हाट, नल. अगर दोनों नल है दैट मींस वो लीफ नोड है, बट लीफ नोड है एटलीस्ट नोड है वो, है ना, तो उसको काउंट करना है. तो यहाँ इस केस में क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे व्हाट, 1. और एल्स के केस में आएंगे, तो एल्स के केस में हमारा एक्सएल हम लेफ्ट साइड के लिए काउंट करेंगे, तो नोड्स को कॉल करेंगे, अगेन रिकर्सिव कॉल. सो एस के लेफ्ट पार्ट में कॉल करेंगे, और सिमिलरली आप राइट पार्ट में जब कॉल करेंगे तो नोड्स फॉर व्हाट, नोड्स फॉर एस राइट. So what is S right? So SRP. एंड जब आप करंट नोड पे थे तो आपने लेफ्ट राइट को कॉल किया, तो करंट नोड भी काउंट करना है, करंट नोड काउंट करना है. सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, 1 प्लस XL प्लस XR. ओके, सो दिस इज दिस सेल्स एंड दिस इज द क्रॉस. तो आप चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका नल है, ये आपकी फील्ड्स नल है. ओके, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, दीज आर द नल पॉइंटर्स. व्हाई? बिकॉज दीज आर लीफ नोड्स. ओके, now start from here. So this is your S. So S is not null. Yes, S left है, लेफ्ट पे आए, फिर S लेफ्ट है, लेफ्ट पे आए, फिर यहाँ से क्या रिटर्न होगा, this will return what, 0, और this will return 1. Why? Because left और right इसका तो नोड है ultimately. So this part will execute, है ना, this part will execute. So in that case 1 will be returned. Here also 1 will be returned, and current node से जब कॉल किया होगा तो 1 plus 1 plus 1. So overall 3 nodes including this. And same here, 1 and 1. And here also 1 plus 1 plus 1. So overall 3 nodes. So here what will happen, this 1 plus this 3 plus this 3. So overall what, overall 7 nodes are there. So this is the answer, because the tree is having what, 7 nodes. So number of node count, very similar type of program, but you are supposed to remember that what will be the initial condition, what will be the recursive call, and in that case. So all these things. So very simple programs and recursive programs. So see, this is the program. Node count is the function name, and struct bt node star root, है ना. So if root double equal to null, then return 0. Very simple, means no tree is given at all. Okay, and else if root left pointer double equal to null and root right pointer double equal to null, means that means the node, current node is what, leaf node. Leaf node है तो उसको काउंट करना है, तो रिटर्न क्या करेंगे, 1. ठीक है, और फिर फर्दर एल्स के केस में हम आएंगे. सो व्हाट विल बी द एल्स, सो द एल्स पार्ट विल एग्जीक्यूट लाइक दिस कि नोड काउंट लेफ्ट के लिए काउंट करेंगे, एक्सेल में स्टोर किया, करंट नोड पे हम
राइट के लिए कॉल किया, राइट के काउंट किया और करंट नोड को भी ऐड ऑन करना है, सो 1 प्लस एक्सएल प्लस एक्सआर रिटर्न करेंगे. ओके, सो दिस वे this current node including left nodes and right nodes, all these nodes will be है ना added on and finally the result will be returned. So this is the same है ना. So obviously returning what integer value, so always the return type is what integer. So I am not actually implementing this. If you go in the actual implementation, then little bit modifications will be there definitely है ना. So some sort of modification what, जैसे XL यहाँ पर है, XL मैंने यहाँ डिक्लेयर नहीं किया है, तो मैं प्रोग्रामेटिकली बात कर रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ. तो अगर आप प्रोग्राम बनाएंगे इसका, तो XL जो है आपको यहाँ क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंटीजर. XR भी क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंटीजर यहाँ इंटरनली है ना, फिर वो कैलकुलेट होंगे. सो दीज ना फ्यू बेसिक स्टेप्स आर देयर, बट you know है ना how these things are going on. So ultimately we are learning what concept. So this is about the node count. Okay, so it is also very important, node count, how to calculate the number of nodes in a given binary tree. Now so this is what height of what nodes in the given binary tree. Okay, or not, it is height of not nodes, height of given binary tree. Height of given binary tree, this is incorrect. Height of given binary tree. So what is height of given binary tree? So let us suppose this is what, this is your root node or say S है ना. तो यहाँ पर जब आप लेफ्ट, सेम कॉन्सेप्ट है ना, अगर S नल है तो 0 रिटर्न करेंगे, लेफ्ट और राइट नल है तो भी 0 रिटर्न करेंगे, बिकॉज इट इज हैविंग नो हाइट है ना. बट XL जो है आपका और XR जो है, XL और XR को हम कंपेयर जरूर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि इफ XL अगर ग्रेटर देन है आपका किससे, XR से, तो हमें जो रिटर्न करना है, तो रिटर्न क्या करेंगे हम यहाँ इस केस में, हम रिटर्न करेंगे 1 प्लस XL, क्योंकि XL जो कैलकुलेट करके आया होगा उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, करंट नोड है ना. और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या रिटर्न करेंगे, दैट मीन्स क्या कंडीशन ट्रू है, मीन्स आपका जो राइट पार्ट है, राइट पार्ट सब ट्री है, वो दैट इज हैविंग हायर नोड है ना, और हायर हाइट. सो इन दैट केस 1 प्लस XR विल बी रिटर्न. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट okay behind it, and all the remaining program is same, remaining part is है ना, all the remaining thing is same. So these are null है ना pointers, these are null pointers, these are what, null pointers. So see, observe carefully. So it is height of tree, struct bt node root is given, and if root double equal to null, return 0. It is very similar to the previous programs. Okay, if root double equal to null, then there is nothing to return, so it is return what, 0. Else, so what will be there in else? So else part says that if root का लेफ्ट पॉइंटर एंड रूट का राइट पॉइंटर नल है, मींस दैट नोड इज व्हाट, लीफ नोड, सो इन दैट केस आल्सो 0 रिटर्न. और फिर एल्स के केस में क्या होगा, अगर आपका दैट इज नॉट व्हाट करंट नोड जहां है वो कोई इंटरनल नोड है, तो फिर उसका हाइट ऑफ ट्री कॉल किया लेफ्ट पॉइंटर के लिए XL, हाइट ऑफ ट्री कॉल किया राइट पॉइंटर के लिए XR, और अगर XL ग्रेटर देन इक्वल टू XR है तो हमने 1 प्लस XL किया, क्योंकि XL का हाइट ज्यादा आया है तो करंट नोड की हाइट भी ऐड करना पड़ेगा उसमें 1, और अदरवाइज XL मोर होगा तो 1 प्लस XR करेंगे आप, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज वी आर कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ ट्री. ओके, सो हाइट ऑफ ट्री इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. Getting point? So if you observe here also the same thing, that this part will return 0 है ना, and this part will return what, 0 again here. So 0 plus 0 0 is always है ना, so 1 plus 0 will be returned, so 1 plus 0 is what, 1. So here what 1 will be returned over here है ना, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका कितना आएगा, यहाँ से भी 0 रिटर्न होगा, यहाँ से भी 0, so it is 1 plus 0, take any 0, so 1 will be returned here है ना. तो अब यहाँ पे दोनों सेम है, अगर कोई लार्ज होता तो उसमें से हम वो वाला कंसीडर करते, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 plus 1, 1 plus 1 means 2. So 2 is what height of the tree. So I think that this concept is clear to you है ना. So this is the corresponding program. Now one question is given which was asked in some previous year है ना, previous gate question or previous somewhere in competition. Okay, so the question says that consider the following C program.
So do is a function name. Struct bt node star p means address of the binary tree is given to you, and this is the entire code from here to here block, and this is the else condition. And if p double equal to null, अगर जहाँ पॉइंट कर रहा है वो null है तो सिंपली रिटर्न करना है, अदरवाइज you are supposed to do what? These 4 tasks. So these 4 tasks means, let us suppose number 1, number 2, number 3 and number 4, and keep remember that this first task is what? Printing the data. then left के लिए कॉल करना है सेम है ना, do p of left, फिर print the data, then right के लिए कॉल करना है. Okay, now what will be the output if you apply the above code in the following binary tree? So the code is given, the binary tree is given, this is the binary tree. तो हमें इस पे क्या करना है? ये कोड अप्लाई करना है और हमें चेक करना है कि ये आउटपुट क्या देगा. तो हमें ये केवल 4 स्टेटमेंट्स यहाँ है ना कीप इन माइंड दैट फर्स्ट हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे डेटा को, सेकंड लेफ्ट पॉइंटर कॉल करेंगे, थर्ड हमारा प्रिंट करेंगे फिर डेटा को, और फोर्थ हम राइट पॉइंटर कॉल करेंगे. ठीक है, तो यहाँ 4 टास्क परफॉर्म करना है. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1, 2, 3 and 4. यहाँ भी हमें 4 टास्क परफॉर्म करना पड़ेंगे फ्रॉम ईच एंड एवरी नोड. ठीक है, यहाँ भी हमें 4 करना पड़ेगा, 1, 2, 3 and 4. सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग कि हमें चारों के चारों टास्क यहाँ परफॉर्म करना है. ठीक है, 1, 2, 3 and 4. Here also 1, 2, 3 and 4, and again 4 tasks over this node है ना, because recursive call 1, 2, 3 and 4 recursive प्रोग्राम है, तो हमें है ना हर नोड पे मूव करना पड़ेगा. नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. तो 4 पार्ट्स क्या थे? पहला पार्ट यहाँ से रूट से हम एग्जीक्यूट करेंगे. पहला था उसका डेटा प्रिंट करना. सो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दैट केस? डेटा प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? नोड क्या है हमारा? ए, तो ए प्रिंट होगा पहले. फिर सेकंड था लेफ्ट पे मूव कर गए, तो लेफ्ट पे मूव करें तो लेफ्ट पे आ गया, अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है लेफ्ट है ना. फिर यहाँ बी पे फर्स्ट पार्ट आपका क्या था कि प्रिंट करना डेटा, तो क्या प्रिंट होगा? इट इज बी. देन सेकंड पार्ट फिर आया, तो सेकंड में फिर कॉल चला गया तो लेफ्ट पे आ गया. फिर इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? डी, डेटा प्रिंट करना, तो डी प्रिंट किया. फिर सेकंड पार्ट था लेफ्ट पे, तो लेफ्ट पे गए, कुछ नहीं है, वापस आ गया, सेकंड कंप्लीट. थर्ड था डेटा प्रिंट करना, तो अगेन डेटा प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट होगा? डी. देन ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, फोर्थ है राइट साइड में, तो राइट इसका कुछ है नहीं, गए वापस आ गए, रिटर्न. ओके, दिस नोड गेट एग्जीक्यूटेड. अब यहाँ ये वापस आए तो यहाँ वेक्टर किया तो सेकंड एग्जीक्यूट हो गया. थर्ड में क्या था कि डेटा प्रिंट करना, तो थर्ड डेटा क्या प्रिंट होगा? थर्ड बी पर है, तो हमारा बी प्रिंट होगा, बी का डेटा. फिर फोर्थ है आपका राइट साइड, तो राइट साइड में आए, राइट साइड में अगेन 4 टास्क परफॉर्म करना है. तो 1 पे क्या है? 1 पे डेटा है, तो डेटा क्या होगा? ई प्रिंट होगा. देन आफ्टर दैट सेकंड इज व्हाट? सेकंड हमें लेफ्ट पे जाना है, तो लेफ्ट पे आए, फिर लेफ्ट पे 4 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट है डेटा प्रिंट करना, एफ प्रिंट होगा. सेकंड पार्ट है लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट कुछ है नहीं, ओवर. थर्ड पार्ट है डेटा प्रिंट करना, डेटा क्या प्रिंट होगा? अगेन एफ विल बी प्रिंटेड. देन फोर्थ पार्ट राइट, राइट इज ओवर. नाउ कम बैक, सो सेकंड पार्ट इज ओवर फॉर ई. नाउ थर्ड इज व्हाट? प्रिंटिंग द डेटा. सो व्हाट इज डेटा? E. E will be printed for that node. Fourth is right side, so right side is nothing, so just completed. Now come back, this fourth is executed for B, come back, so this second is executed for A. Now third is what? Printing the data. So printing the data means A will be printed. Observe very carefully, these programs are very frequent, they are asked in any exam or interview, so these are very important concepts. So now come to third, so data will be printed. Fourth part is right side, so call just right side. So it is 1, 2, 3, 4. Now 1 is what? C. For C1 means data will be printed. So data is what? Data is C. Now second is what? Come to left. So left is what? 1, 2, 3, 4. So 1 is what? Data will be printed. So data is what? G. Now second is what? Second आपका left पे जाएंगे तो left is nowhere है ना, left है ही नहीं, तो it is completed. Now third is what? Third for right side. Third is what? For data. So what is data? Data is G. So again G will be printed. Now after that fourth is what? Right side. So come right side. So right side में चारों execute होंगे, तो first execute हुआ, so it is I will be printed. I will be printed. Then after that second left part over, no left part is there. Third is data. So what is data again? I will be printed. Then fourth part is right. So right part is over because it is having no right part, right pointer. Now come back. So G. So G fourth is over. Now come back to C. C से कॉल आया था, तो C का सेकंड पार्ट ओवर हो गया. फिर आप थर्ड पे आएंगे तो डेटा विल बी प्रिंटेड. सो व्हाट इज डेटा? डेटा इज C. C will be printed.
आफ्टर दैट फोर्थ पे आए तो राइट साइड में है, राइट साइड में फिर 4 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, डेटा विल बी प्रिंटेड, सो अगेन H. Then second part is what? Second part left. So left is nothing is there left. So over. Third is what? Data will be printed. So again H will be printed in that case. Observe very carefully. And fourth part is what? Right side. So right side nothing is there. So means just come back. है ना? So over. Now come to C. So fourth is executed. Now come to A. So fourth is executed. So the execution is over, and you are getting this as the output. So this is your required output for this program. This is your required output. सो सिंपली क्या करना है हमको, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली कि जितने भी टास्क परफॉर्म करना है वो हर नोड पे करना है आपको, ठीक है. देन इट इज वेरी सिंपल टास्क, है ना, कि आपको हर एक नोड पे सारे के सारे टास्क परफॉर्म करना है, जितने भी स्टेटमेंट है उसी सीक्वेंस में करना है. तो बस उसी सीक्वेंस में करते गया और आउटपुट आ गया मेरा, ठीक है. नाउ ऑब्जर्व नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर टाइप, सो दैट इट इज क्लियर टू यू, है ना. सो द क्वेश्चन सेज दैट consider the following C program. So C program is function is what, to and struct bt node pointer p is given. So like this is the starting to end body, and this is the else part. So what, p double equal to null, so return simply if nothing is there, simply return else. else में यहाँ पे कई सारे parts हैं, ठीक है. So just number this. So this is the 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 5. So first is what, data will be printed. Second is what, right side move, है ना, right pointer. Third is data. Fourth is left pointer. Fifth one is data. So what will be the output if you apply the above code in the following binary tree? So binary tree is also given. So but keep the order in mind. So first printing, second right, third printing, fourth left, and fifth what, right, fifth what, data. So again start from this one. So what, 5 parts will be executed. So it is 1, 2, 3, 4, and 5, and here also 5 things will be executed. So 1, 2, 3, 4, and 5 at each and every node. So again 1, 2, 3, 4, and 5. So remember, 1 is what, data, second is what, right side, third is what, data, fourth is left side, fifth is data. Okay. So data, right side, okay, data, left side, and again data. So data, right side, second is right side, third is data, fourth is left side, and fifth is what, data. Again same. So first is data, second is what, right side, third is data, fourth is left side, and fifth is data. Now observe very carefully what is going to be the output. So the very first thing is output. I am talking about output. So the very first thing is starting from root. So first is what, printing. So what is printing? 1 will be printed. Now second is what, come to right side. Second is what, the right side. So right side, again right side, 5 statements. So first statement is what, data. So what is data? Data is 3. Then after that, second is what, right side. So there is no right side. So just this is over. Third is what, third is data. So data is what, data is again 3. We are at 3 nodes, so data is 3. After that, fourth one is left. So come to left, again left, 5 statements. So first statement is printing the data. So what is data? 7th node, data is 7. And second is what, right side. So come to right side, again right side, 5 statement. So this 5 statement, first statement is printing the data. So it is 8. Second is left over, second is right over. Third is what, printing the data. So again 8 will be printed, and this is what, this is 8. So 8 will be printed, and fourth is what, left side. So left side no one is there. Fifth is what, printing the data. So again 8 will be printed. Means 3 print statement will work at the leaf node. So 888 will be printed. Now come above. So at 7, so second part, right side will be executed. Third is what, data. So data is what, 7. And fourth is what, left. So there is no left. Fifth is what, data. So what is data? Data is going to be 5. Now come to above. So it is what, on fourth. So fourth will be executed. Fourth is what, left part. So over. Then fifth one is what, printing the data. So at which node? 3. So 3 node, data is 3. Now come to above. So this right side part will be executed. Now third is what, printing the data. So data is what, 1. So 1 will be printed. Then after that, fourth is what,
फोर्थ में आपका क्या है कि लेफ्ट साइड में मूव करना है. सो कम टू लेफ्ट साइड में फिर 5 स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट? डेटा. सो व्हाट इज डेटा? सेकंड नोज डेटा इज 2 and second one is right side, so there is no right side, so it is over. Third one is printing the data, so data will be what? 2, so again 2 will be printed. And fourth one is what? Left side. So come to left side. So I think this is right side only, this is not left side. Okay, this is what this 2 is not printed, so this will not print, है ना. So for second part, है ना, for second one come to right side. So what right side? Again 5 statements. So first statement is data will be printed, so data is what? 4. And after that second statement is what? Right side. So there is no right for 4, over. Third is data, so data is printed, so it is 4. Now fourth is left side, so come to left side. So left side is 1 2 3 4 5. So लेफ्ट राइट कुछ है नहीं, इसमें केवल 3 प्रिंट होंगे. सो 3 टाइम्स व्हाट विल बी प्रिंटेड? 5. सो इट इज 5 5 and 5. And after returning, so fourth statement is over. Now fifth one is printing the data, so data is what? 4. 4 will be printed. Now come to our part. So our part, this second statement is over. Okay, right side. Now third one is what? Third one is data. So what is data? Data is 2. And fourth part is what? Fourth part is left side. So left side 2, left is no there, and nothing is there. Now fourth is what? Fifth is what? Data. So data is what? Data is again 2. Now come to above. So this fourth part will execute left side. So left right all is over. So fifth one is printing the data. So data is printed will be 1. So this will be your required output. Okay. If you apply the previous code or this current code to this current what tree, then you will get this as the output. So these questions are very frequent, again I am saying. Now next is very interesting. So next problem says that consider the following C program. So here one do something statement is there. So it is do something function, and this is else part, and this is do nothing. Okay, and this is what? Else part. So observe very carefully, very carefully, very interesting. So this, why it is very interesting? Because do something, अगर p पे हम do something करते हैं, तो अगर p null है तो रिटर्न हो जाएगा. else में वो पहले प्रिंट करेगा डेटा, तो फर्स्ट. सेकंड में वो do nothing कॉल कर रहा है. do nothing दूसरा फंक्शन है, ठीक है. और थर्ड में भी do nothing कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट और राइट के लिए. तो ये do nothing और do something डिफरेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है. तो यहाँ पर हम बात करते हैं. तो फिर इसके बाद फिर फर्दर जब डू नथिंग पे गए, तो डू नथिंग में फिर क्या कॉल कर रहे हैं? डू नथिंग में डू समथिंग कॉल कर रहे हैं, है ना. फर्स्ट सेकंड पे प्रिंट कर रहे हैं और थर्ड में भी डू समथिंग कॉल कर रहे हैं. तो अगर देखें हम, तो लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस एंटायर स्टेटमेंट वी आर अज्यूमिंग एज ए, एंड दिस एंटायर फंक्शन इज अज्यूमिंग एज बी. सो ए इज कॉलिंग बी एंड बी इज कॉलिंग ए. सो ए is calling B, and at the same time B is calling A. So A is calling B and B is calling A. So this is nothing but what? Indirect recursion. Indirect recursion. So at the time of recursion and its type explanation, I told you that types of recursion are what? Tail recursion, non-tail recursion, nested recursion, and indirect recursion. So at that time I just illustrated a basic example that this is just a illustration for illustration purpose, indirect recursion, and also told that this indirect recursion question or this concept we will see in tree concept or tree lecture. So now this is the indirect recursion. Okay, so now observe very carefully. This is indirect recursion, and क्या करना है हमको? पहले ये ट्री गिवन है, इस ट्री पे डू समथिंग लगाना है रूट पे. डू समथिंग रूट के लिए कॉल किया, ठीक है. डू, अब नेमिंग हमने यहाँ पे की हुई है. डू समथिंग को हमने बोला है ए और डू नथिंग को हमने बोला है बी. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, ठीक है. डू समथिंग को ए और डू नथिंग को क्या बोला है हमने? बी. तो जब डू समथिंग लगाना है तो ए हमें लगाना है कहाँ पे? इस पे, ए पे. तो हमें यहाँ पे ए अप्लाई करना है, ठीक है. और लेट अस
ओके ओके, वेल एंड गुड। ए हमें अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स हैं, 1 2 और 3। ए के अंदर 3 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए कॉल किया, तो ए के केस में हमने क्या किया, यहाँ पे ए में जब 3 स्टेटमेंट्स थे, तो ए के 3 स्टेटमेंट क्या थे कि पहले डेटा प्रिंट करना, फिर बी को कॉल करना है ना लेफ्ट के लिए, और थर्ड था बी को राइट के लिए कॉल करना, ठीक है। तो पहले हमने ए का डेटा प्रिंट किया, सो डेटा विल बी प्रिंटेड। सो व्हाट डेटा विल बी प्रिंटेड इन दैट केस, सो डेटा इज व्हाट, ए विल बी प्रिंटेड। सेकंड इज व्हाट, लेफ्ट के लिए डू नथिंग कॉल करना, लेफ्ट के लिए डू नथिंग मींस बी कॉल करना, तो यहाँ बी के लिए क्या कॉल होगा, बी। तो बी में अगेन क्या है, 1 2 और 3, ठीक है। तो बी में फर्स्ट पार्ट क्या है, बी मीन्स दिस पार्ट है ना। तो बी में फर्स्ट है कि डू समथिंग कॉल करना लेफ्ट के लिए, ठीक है। तो डू समथिंग कॉल जाएगा लेफ्ट के लिए, तो लेफ्ट के लिए यहाँ डी के लिए डू समथिंग व्हाट, ए का कॉल गया। तो ए में अगेन फिर कितने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। फिर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे आए हम, तो ए के फर्स्ट पार्ट पे, सी ऑब्जर्व केयरफुली, ए के फर्स्ट पार्ट पे डेटा प्रिंट करना है। तो डेटा क्या है यहाँ पे, डेटा है डी। सो दिस फर्स्ट पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, व्हाट, डी। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। सेकंड पार्ट फॉर ए, सेकंड पार्ट फॉर ए इज व्हाट, सेकंड पार्ट फॉर ए इज व्हाट, डू नथिंग फॉर लेफ्ट। तो लेफ्ट के लिए बी कॉल करना है, डू नथिंग मींस बी। तो लेफ्ट इसका है नहीं, तो ये ओवर। थर्ड पार्ट क्या है, डू नथिंग व्हाट, राइट के लिए, राइट के लिए, तो राइट भी इसका नहीं है, सो दिस इज आल्सो ओवर। नाउ कम बैक है ना, कम बैक, सो व्हाट, बी। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट था बी का, क्या, बी का फर्स्ट स्टेटमेंट था डू समथिंग लेफ्ट के लिए, तो ये हो गया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है आपका बी का प्रिंट करना है उसका डेटा, है ना। तो डेटा प्रिंट करेंगे, तो डेटा क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, करंट नोड क्या है, बी, तो यहाँ पे बी प्रिंट होगा नेक्स्ट। फिर बी के बाद यहाँ थर्ड क्या है, बी का, बी मीन्स डू नथिंग का थर्ड। सो डू नथिंग का थर्ड आप देखिए, डू नथिंग का थर्ड है राइट साइड के लिए डू समथिंग कॉल करना, ठीक है। तो राइट साइड के लिए आप डू समथिंग कॉल किया, डू समथिंग मीन्स ए कॉल किया आपने। तो ए में कितने स्टेटमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। तो ए का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए मीन्स डू समथिंग, तो उसका डेटा प्रिंट करना है। तो डेटा प्रिंट करोगे आप, तो डेटा क्या है, ई, तो ई विल बी प्रिंटेड इन दैट केस। एंड सेकंड पार्ट इज व्हाट, सेकंड पार्ट इज वी आर कॉलिंग, है ना, लेफ्ट पॉइंटर बी, बी मीन्स डू नथिंग। सो अगेन हेयर बी विल बी कॉल्ड, बी इज व्हाट, 1 2 एंड 3। और बी में आप क्या करेंगे, बी मीन्स डू नथिंग, तो डू नथिंग में आपने क्या करना है, पहले डू समथिंग मीन्स ए, लेफ्ट के लिए ए कॉल करना, और डेटा और राइट के लिए। सो लेफ्ट के लिए ए कुछ है नहीं, ओवर, है ना, और फिर डेटा, सो डेटा इज व्हाट, सेकंड पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, सो एफ, एंड थर्ड राइट नथिंग इज देयर, सो कम बैक। सो दिस सेकंड पार्ट इज एग्जीक्यूटेड। नाउ ए का थर्ड आपको कॉल करना है, तो ए का थर्ड क्या है, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, ए का थर्ड डू नथिंग करना है राइट के लिए, सो राइट साइड इसमें है नहीं, सो इट इज ऑल्सो ओवर। नाउ कम बैक, सो दिस थर्ड पार्ट इज ऑल्सो ओवर, सो थर्ड के लिए आए थे यहाँ पे ओवर। नाउ कम बैक, तो ए पे आते हैं इनिशियल नोड पे, है ना, रूट नोड पे, रूट नोड का सेकंड। तो सेकंड क्या है, ए का सेकंड मीन्स आपको डू नथिंग करना है लेफ्ट के लिए, मीन्स बी कॉल करना है लेफ्ट के लिए। तो लेफ्ट इसका, ये सेकंड हो चुका है, ये सेकंड के लिए आए थे, अब थर्ड पे आ रहे हैं ना। थर्ड इज व्हाट, राइट के लिए आपको डू नथिंग कॉल करना है, मीन्स बी। तो यहाँ पे बी कॉल होगा 1 2 एंड 3 के लिए। तो हम यहाँ पर आ गए, तो बी में 1, बी मीन्स डू नथिंग में फर्स्ट क्या है आपको, लेफ्ट, ये लेफ्ट पे जाना है आपको, ठीक है। तो ए कॉल करना है, और ए कॉल करना है आपको, 1 2 और 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। तो ए में आपका क्या है, ए में 3 स्टेटमेंट मीन्स समथिंग में क्या है आपका, डेटा, लेफ्ट और राइट। सो डेटा क्या प्रिंट होगा, डेटा विल बी प्रिंटेड व्हाट, जी। लेफ्ट और राइट कुछ है नहीं, तो ये ओवर हो गया। वापस आएंगे, तो ये फर्स्ट ओवर हो गया। सेकंड क्या है, बी मीन्स नथिंग का सेकंड, नथिंग का सेकंड था डेटा प्रिंट करना, तो डेटा प्रिंट होगा, डेटा क्या है करंट अभी, डेटा इज सी, सो सी विल बी प्रिंटेड इन दैट केस। एंड आफ्टर दैट थर्ड स्टेटमेंट इज व्हाट, थर्ड स्टेटमेंट, बी का थर्ड स्टेटमेंट इज राइट के लिए जाना है ना, बी का थर्ड इज राइट के लिए, सो देयर इज नो राइट फॉर सी, सो दैट इज आल्सो ओवर। नाउ कम बैक, दिस इज आल्सो ओवर, सो द फंक्शन इज ओवर and you are getting what, A D B E F G C, okay, A D B E F G C. So this is the output if you apply what, do something on root, okay. Now next is what, next is what, do nothing on root. तो do nothing में आप keep in mind, do nothing में आपको क्या करना है,
पहले 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो पहले किसको कॉल करना है, एक दूसरे को ही कॉल कर रहे हैं वो, ठीक है। सो ऑब्जर्व केयरफुली। तो यहाँ मुझे बी अप्लाई करना है, डू नथिंग। तो बी में क्या है, मेरा 1 है, 2 है और 3 है। तो बी के 1 में क्या है, मुझे लेफ्ट पे ए को कॉल किया है, तो यहाँ ए है, ए में 1 है, 2 है और 3 है। तो ए के 1 में यहाँ लेफ्ट पे बी को कॉल किया है, तो बी है 1 2 एंड 3। और फिर यहाँ पे ये लेफ्ट राइट कुछ है नहीं, फिर ये बी के ए के थर्ड में किसको कॉल किया होगा, यहाँ बी को कॉल किया है, तो यहाँ बी कॉल है। सो बी है 1 2 एंड 3। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, बी में ए को कॉल किया है, तो इट इज ए व्हाट 1 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर देयर इन ए। एंड सिमिलरली यहाँ बी से किसको कॉल जाएगा, ए को कॉल जाएगा, ए मीन्स डू समथिंग को, तो यहाँ आएगा 1 2 एंड 3 स्टेटमेंट। और फिर ए से किसको जाएगा, बी को कॉल, बी मीन्स डू नथिंग को, तो यहाँ आएगा बी का 1 2 एंड 3। नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, इट इज वेरी सिंपल, ओके। if you are getting, so then it is very simple. अगर आपको है ना, if you are remembering the code, so what is code, b क्या है, do nothing। do nothing में पहले क्या था, लेफ्ट पे मूव करना है, तो लेफ्ट पे आ गए। फिर यहाँ a में do something में पहले क्या था, do something में पहले आपका डेटा प्रिंट करना है, फिर लेफ्ट और राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ डेटा प्रिंट करना है आपको, तो डेटा प्रिंट होगा पहले, तो डेटा प्रिंट क्या हुआ, b, तो पहले आउटपुट क्या आएगा, पहला आउटपुट आया b। फिर यहाँ सेकंड में क्या था, आप लेफ्ट में मूव कर गए, तो लेफ्ट में बी में क्या था आपका, बी में आपका लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, और सेकंड पार्ट था डेटा, तो डेटा क्या आएगा, डी आएगा, तो बी डी और लेफ्ट राइट हो चुका है। फिर वापस आए यहाँ पे, तो ये सेकंड ओवर हो गया, सो दिस सेकंड गेट्स ओवर। नाउ कम टू थर्ड। सो थर्ड इज व्हाट, राइट साइड। राइट साइड में क्या है कि बी को आपने, बी में क्या है, पहले आपका लेफ्ट पार्ट में गए, ठीक है, बी में क्या है, पहले लेफ्ट पार्ट में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले लेफ्ट पार्ट में गए, तो इस ए में आपका डेटा प्रिंट होगा, लेफ्ट राइट कुछ है नहीं, सो डेटा क्या है इसका, एफ विल बी प्रिंटेड। नाउ दिस फर्स्ट इज ओवर, सो सेकंड इज व्हाट, सेकंड में डेटा प्रिंट होगा, डेटा इज व्हाट, ई। देन थर्ड इज आल्सो ओवर बिकॉज राइट साइड नो वन इज देयर। नाउ कम टू हियर, सो दिस थर्ड पार्ट इज ओवर। नाउ कम टू हियर, सो दिस फर्स्ट पार्ट इज ओवर। नाउ सेकंड फॉर दिस बी, है ना, सेकंड फॉर दिस बी इज व्हाट, अगेन कॉल, है ना। Second for B is what? Second for B is just printing. So print the data. So data will be printed. So it means A will be printed here. Now third part. So third के लिए यहाँ A पे आए, तो यहाँ पहले इसका first क्या है? First है इसका data print करना. So what will be the data printed? Data will be printed as C. So first over. Second है left पे आना, तो left पे आए, लेफ्ट पे आप आएंगे भी, तो 3 स्टेटमेंट्स ओवर हो जाएंगे, इनमें से एक में क्या है आपका, प्रिंट करना, सो जी विल बी प्रिंटेड इन दैट केस। नाउ कम बैक, सेकंड इज ओवर, सो थर्ड इज व्हाट, राइट, राइट नो वन इज देयर, कम बैक, राइट, राइट नो वन इज देयर, ओके। सो दिस इज ओवर। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस यू आर गेटिंग B D F E A C G, okay। if you are applying what, do nothing on root, and if you are applying do something on root, so then the previous output will be there. So these are indirect recursion, okay। So if you are not getting, then just rewind the video and do it by yourself, okay। And always this is this trick is always workable. So if a question is solved by me, so just pause over there, copy the question and solve it manually by yourself, and if finally if you are not getting, then just see the video and rewind it, okay। So then you will definitely get. And always if you have any problem, then after that also, then just write in the comment box of this particular video, okay। So then I will resolve it. Now the next question is what, observe very carefully. So it is written like a data structure. A data structure is comprised of nodes, each of which has exactly 2 pointers to the other nodes with no null pointer. So means there is no null pointer. Some sort of addressing is always there. The following C program is to be used to count the number of nodes in the given binary tree. Okay, तो number of nodes count करने के लिए program बना है. It uses a mark field assumed to be initially 0 for all the nodes. So there is a statement missing from the code. Find out that. So there is a statement missing. So what? So this is the struct what test and info and mark. So 2 integer part is there, so mark is there, है ना, mark initially 0 for all, और 2 pointers हैं left और right, और ये आपका कोड है कि integer node count,
और ये Q दिया है जहां पे अप्लाई करेंगे, और A मार्क अगर है, A एरो मार्क मीन्स इफ इट इज देयर मीन्स इनिशियली वैल्यूज मार्क की क्या है सारी 0, अगर 1 होगी तो वो रिटर्न कर देगा, और एल्स में स्टेटमेंट मिस है और इसके बाद रिटर्न कर रहे हैं नोड काउंट ऑफ ए पी मीन्स लेफ्ट पॉइंटर प्लस नोड काउंट ऑफ राइट पॉइंटर एंड +1। तो करेंटली जिस नोड पे है वो ऐड कर रहे हैं और लेफ्ट काउंटर और राइट काउंटर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन इन दैट केस। तो जैसे हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं केयरफुली, तो सबसे पहले इनिशियली कहाँ से कॉल होगा, यहाँ से। तो जब यहाँ से कॉल होगा इनिशियली, ठीक है, तो इनिशियल कॉल के लिए आपको क्या क्या कॉल गया, क्यू, लेट अस सपोज दिस इज क्यू, तो क्यू के लिए कॉल गया, ठीक है। तो क्यू में पहले इसका मार्क फील्ड क्या है, इनिशियली सबकी 0 है, तो मार्क फील्ड ये 0 है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट में क्या है, एल्स पार्ट में आपका लेफ्ट के लिए, फिर राइट के लिए, फिर +1, तो यहाँ लेफ्ट के लिए आए, फिर लेफ्ट में मार्क फील्ड ये ओवर, तो यहाँ है डी पे, डी का मार्क इज ऑल्सो 0, तो इसके लेफ्ट के लिए, तो लेफ्ट के लिए अगेन कहाँ आएंगे आप, मार्क पे, ठीक है। तो ये अगर आप इस तरीके से मार्क पे आएंगे आप रिटर्न करके, तो आप देखेंगे फिर 0 है, तो फर्दर ये लूप हो जाएगा ना, दिस विल बिकम अ लूप। तो ये चेन कब ब्रेक हो सकती है, अगर इनिशियली हमने यहाँ इसके लेफ्ट पॉइंटर पे मूव करने के पहले ही जो हमारा ब्लैंक कोड था, वहां अगर हम इसको मार्क को क्या कर देते, चेंज 1 कर देते अगर हम इसको, तो अगर हम ये कर देते कि ए एरो मार्क इक्वल्स टू 1, ये कहा एल्स पार्ट में, और इसके बाद फिर फर्दर हम फिर कॉल करते इसको और रिटर्न करते, तो क्या कॉल करते हम वट एवर द फंक्शन नेम, व्हाट इज फंक्शन नेम, नोड काउंट। तो हम यहाँ पे नोड काउंट कॉल करते ए एरो पी के लिए मीन्स लेफ्ट साइड के लिए, प्लस नोड काउंट करते ए एरो क्यू के लिए मीन्स राइट साइड के लिए, एंड +1 उसमें ऐड करते, ठीक है। सो देन दिस विल वर्क, सी ऑब्जर्व केयरफुली, ये 1 किया, फिर यहाँ आए तो ये 1 किया, फिर इसके लेफ्ट पे आए तो ये 1 किया, फिर जब यहाँ लेफ्ट पे गए तो उसका ए एरो मार्क क्या मिला, 1, तो रिटर्न कर दिया। सो रिटर्न इज व्हाट, सिंपली रिटर्न, ओके, रिटर्न इज 0। सो 0 रिटर्न किया, तो यहाँ वैल्यू क्या आई हमारी, यहाँ वैल्यू आई 0, ठीक है। तो यहाँ हमारी 0 वैल्यू आई, तो और राइट साइड में गए, राइट साइड में यहाँ पे जाएंगे, राइट साइड में व्हाट विल हैपन, राइट साइड में गए यहाँ पे, तो इस नोड के लिए कॉल किया, तो इसका फिर फर्दर लेफ्ट के लिए जाएंगे, फिर राइट के लिए। तो अगर आप अल्टीमेटली ऑब्जर्व करें केयरफुली, तो मार्क फील्ड को आप जब 1 कर चुके हैं, तो आप जब वापस आएंगे, तो जब जिस पॉइंटर से भी वापस आएंगे, ये लेफ्ट से आए थे, ये राइट से आएंगे और ये 1 ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट से 0 आएगा, राइट से 0 आएगा और 1, तो मीन्स ये नोड काउंट हो गया 1। फिर फर्दर जाएंगे तो इस तरीके से, तो हमारा जो लेफ्ट पार्ट था वो क्या है, ए मार्क इज इक्वल्स टू 1, मीन्स अगर आप ये नहीं करेंगे, सो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका ए एरो मार्क इज इक्वल्स टू 1, और अगर आप ये नहीं करेंगे देन दिस प्रोग्राम विल एंटर इनटू द इनफिनिट लूप इफ यू अप्लाई दिस प्रोग्राम or this code on a particular given tree, so then this will happen. So I hope that this concept is clear. It is also one of the previous year question. Now let us see this. So this is a binary tree given, okay. So what is in order traversal of this binary tree? So if I observe in order में क्या आएगा, पहले आएगा आपका लेफ्ट नोड राइट आता है, सो डी बी देन ई, लेफ्ट हो गया, अब नोड आ जाएगा ए, देन एफ सी एंड जी, ओके। सो दिस इज अ स्पेशल ट्री विच इज कॉल्ड एज व्हाट, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो क्या होता है, जब बाइनरी ट्री हम बात करते हैं, तो बाइनरी ट्री के लीफ नोड्स जो हैं वो सारी फील्ड क्या होती है, नल होती हैं। तो ये सारी फील्ड नल है, तो हम लास्ट लेवल पे जितने भी लीफ नोड्स हैं उन सारे पॉइंटर्स को इनएफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग दोज लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर एफिशिएंटली। सो फॉर है ना, फॉर व्हाट, फॉर सक्सेसफुल यूटिलाइजेशन है ना, और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन फॉर द लास्ट नोड लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स, सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी विल कीप इन ऑर्डर व्हाट प्रीडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर in a particular leaf node में हम क्या रखेंगे, in order predecessor और successor. So that is written if in the given binary tree last level all the nodes contain null pointer, means left pointer right pointer both are what, null.
So we are not using leaf nodes लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर एफिशिएंटली. तो हम क्या करें, अगर लीफ नोड्स में राइट पॉइंटर में इन ऑर्डर सक्सेसर एड्रेस रख दें और लेफ्ट पॉइंटर लीफ नोड्स के लेफ्ट पॉइंटर में इन ऑर्डर प्रीडिसेसर रख दें, देन बाइनरी ट्री जो होगा, दैट बाइनरी ट्री इज कॉल्ड एज व्हाट, थ्रेडेड बाइनरी ट्री. ओके, सो अगर हम देखें डी के पहले कुछ है क्या, डी के पहले कुछ नहीं है, तो ये तो नल ही रहेगा. ठीक है, बट डी के बाद इसका प्रीडिसेसर सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर होगा बी. तो यहाँ किसका एड्रेस आएगा, यहाँ आएगा इसका एड्रेस. देन ई का प्रीडिसेसर क्या होगा, तो दिख रहा है ई का प्रीडिसेसर क्या है इन ऑर्डर में, बी. तो यहाँ एड्रेस किसका आएगा, यहाँ आएगा बी का एड्रेस. और डी का सॉरी ई का सक्सेसर क्या होगा, ए. दिख रहा है यहाँ पे, तो ए पॉइंट करेगा ए पे. सिमिलरली यहाँ एफ का प्रीडिसेसर क्या है, एफ का प्रीडिसेसर है आपका ए. तो यहाँ किसका एड्रेस होगा, ए का एड्रेस होगा. और एफ का सक्सेसर आपका क्या है, एफ का सक्सेसर है सी. तो यहाँ आपका सी का एड्रेस होगा. और सिमिलरली जी का प्रीडिसेसर आपका क्या है, जी का प्रीडिसेसर है आपका सी. सो प्रीडिसेसर इज सी एंड जी का सक्सेसर देयर इज नथिंग, सो दिस पार्ट इज नल. So now we are using this word efficiently. Okay, so I hope that these concepts are clear to you. So the concept we discussed so far in this lecture are what do you understand by tree. So tree is a hierarchical data structure which is mainly used for searching purpose, है ना. If you want to search something, then store all the keys or data part in what tree. So then it will. So now in further lectures we will see how I'm saying that it is mainly used for searching, because it will give us what time complexity is less, in searching case, if we are using tree. And also we saw some programs like calculation, calculate number of nodes, number of leaf nodes, number of internal nodes, height of the tree programmatically, and some basic programs or the code or questions asked in the previous year GATE exams as well as in other competitive exams and interviews. So we saw those problems and how to solve these. Also we saw indirect recursion. Okay, and finally we saw the threaded binary tree. So in next class I will discuss what binary search tree and balanced binary search tree, that is ABL tree, Andelson-Welsson-Lansky. So stay tuned and keep connected. So, and if you are learning from these videos, then please like, subscribe and share this channel to your learning community so that other will also get benefited. So happy learning to all of you. Stay safe.